بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ خبرنامے میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں سیاسی گہما گہمی عروج پر، پولنگ 8 فروری جمعرات کو ہوگی۔ جلسے جلوس، کارنر میٹنگز کے ساتھ امیدواروں کی انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل۔ الیکشن کمیشن کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعدد امیدواروں کو جرمانے اور وارننگ نوٹسز۔ معاشی سلامتی اور طاقت کے بغیر کوئی ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ملک کو جمہوری لوگوں نے چلانا ہے۔ ہمیں جس حالت میں ملک ملا تھا اس سے بہتر حالت میں آئندہ منتخب حکومت کو منتقل کریں گے۔ توقع ہے کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت عوام کے بنیادی مسائل پر توجہ دے گی۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا لاہور میں سیمینار سے خطاب۔ مسلم لیگ نون نے اپنے ہر دور میں عوامی خدمت کی مثال قائم کی۔ سرمایہ کاری اور معاشی بہتری سمیت ملک میں متعدد میگا منصوبے مکمل کیے۔ پاکستان کا مستقبل آئندہ انتخابات سے جڑا ہے۔ قوم کارکردگی دیکھ کر ووٹ کا استعمال کرے۔ صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی ترجیح ہے۔ پیپلز پارٹی محروم طبقوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ توقع ہے الیکشن میں جیت خدمت کی سیاست کی ہوگی۔ صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آصف علی زرداری کا تلہ گنگ میں جلسے سے خطاب۔ الیکشن جیت کر نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم کریں گے۔ عوام کی فلاح و بہبود ہمارے منشور کا بنیادی نقطہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے۔ مستحقین کو 30 لاکھ گھر اور 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کی جائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ معاشی بہتری سے لوگ خوشحال ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر ملک کو معاشی طور پر مضبوط کریں گے۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ رشتوں اور لازوال محبتوں کی تجدید کا دن، ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کل منایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 76 سال مکمل۔ بھارتی افواج اب تک 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید جبکہ 7,000 سے زائد کو ماورائے عدالت قتل کر چکی۔ کشمیری عوام کی قربانیوں کو رائے گان نہیں جانے دیا جائے گا، حریت قیادت۔ بابری مسجد کے انہدام کے بعد دیگر مساجد بھی مودی حکومت کے نشانے پر۔ نئی دہلی میں صدیوں پرانی اخونجی مسجد کو مودی سرکار نے منہدم کر دیا۔ مسجد سے ملحقہ مسلمانوں کی قبروں اور قرآن پاک کے نسخوں کی بھی بے حرمتی۔ بھارتی فوج بلڈوزر کے ساتھ زبردستی مسجد کے احاطے میں داخل ہوئی۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری۔ صہیونی فوج کے رفح میں پناہ گزین کیمپ اور معصوم بچوں کے اسکول پر بمباری۔ 115 افراد شہید، مجموعی تعداد 27,365 ہو گئی۔ 66,630 زخمی۔ خان یونس میں یورپین ہسپتال کے قریب رہائشی علاقے پر بھی حملہ، متعدد فلسطینی شہید۔ پاکستان کا جذبہ خیر سگالی، غزہ کے شہریوں کے لیے امدادی سامان کی 5ویں کھیپ روانہ۔ سامان میں خیمے، کمبل اور ترپال شامل۔ امداد مصر کے شہر العریش پہنچے گی۔
पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। हालिया कार्रवाइयों में हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर सवालिया निशान। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीम टीटीपी एक ही सिक्के के दो रुख। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा। अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों ही शिद्दत पसंदी के अलंबरदार। भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर खामोश। भारत की जानिब नरम रवैया भी इनके दोहरे मेयार का अक्कास। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। कराची समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जनूबी अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 8 फरवरी को सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला सेमीफाइनल 6 फरवरी को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन 2024 की। मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जल्द से जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है और मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में सियासी रहनुमा जलसों से खिताब कर रहे हैं। सर्द मौसम के बावजूद इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए सियासी जमातें अपने मंशूर में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निमटने के मंसूबे पेश कर रही हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के कायदीन माशी बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना एजेंडा लेकर अवाम के सामने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद उम्मीदवारों को जुर्माने और वार्निंग नोटिस जारी किए हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में मॉनिटरिंग रूम 24 घंटे काम कर रहा है। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। आम इंतखाबात 2024 में उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस और जुर्माने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसमें टेलीफोन, फैक्स, व्हाट्सएप और दीगर जराए से अवाम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक कंप्लेंट सिस्टम ये है जो आप तमाम सिस्टम देख रहे हैं, फ़ोन बज रहे हैं, जिसमें हमने अपना यूनिवर्सल नंबर जो है 051111327000 इसकी 16 लाइनें हैं, वो हमने 26 दिसंबर से ऑन की हुई हैं और पूरा पाकिस्तान हमें कंप्लेंट्स दे रहा है। मुख्तलिफ हवालों से कंप्लेंट्स है, वोट इंदराज से लेकर पोलिंग स्टेशन से लेकर जो भी हैं, तो वो कंप्लेंट्स हम ले रहे हैं और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हम जो इलेक्शन कमीशन का अमला है जिस ज़िले से है या जिस हल्के से है वो कर रहे हैं। अब तक इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 221 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 198 पर कार्रवाई की गई है, जबकि बाकी शिकायत पर कार्रवाई का अमल जारी है। कानून के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जाती हैं, जिसके पास फाइन्स की भी पावर्स हैं और अगर कोई मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हैं ज़ाब्ते अखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन लॉज, इलेक्शन रूल्स या और एनी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो उसमें उनके पास पावर्स हैं, वो फ़ाइन कर सकते हैं, 50,000 तक जुर्माना कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं और अगर कोई बार बार खिलाफ वर्जी करे तो वो डिसक्वालिफिकेशन के लिए भी केस इलेक्शन कमीशन को रेफर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कुल मजमूई तौर पर 1200 ज़ायद टीमें मुख्तलिफ हल्कों में मॉनिटरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, जो कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों को 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद कर सकती हैं। चारों सूबों में क्वेटा, कराची, पेशावर और लाहौर में हमारे सूबाई
मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर हैं, उनका जो इंचार्ज है वो प्रोविंशियल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर है जो ग्रेड 20 का ऑफिसर हैं, और इसके ऊपर ये EMCC कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद है। तो ये सिस्टम इसके मातहत 180 जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमों ने 12,236 गैर कानूनी बैनरों को मुख्तलिफ मकामात से उतारा है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बैलेट पेपर फजाई रास्ते से पहुंचाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवादर, केच, पंजगूर और खारान में बैलेट पेपर्स की तरसील हेलीकॉप्टर्स और C-130 के जरिए की जाएगी। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली के 51 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि पाकिस्तान को जमहूरी लोगों ने चलाना है, जिस हालत में मुल्क मिला था उससे बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि तवक्को है इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। लाहौर में इंतखाबात 2024 के हवाले से नौजवानों, खवातीन, ख्वाजा असराओं और अकलीतों की सियासी अमल में शमूलियत और उन्हें बाख्तियार बनाने के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई तारीख पर इंतखाबात का इनकाद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकलीतों का पाकिस्तान के तमाम शोबों की तरक्की में अहम किरदार है। मुर्तज़ा सोलंकी ने तवक्को जाहिर की कि मुंतखब हुकूमत मुल्क के बुनियादी मसाइल हल करेगी। मुआशी सलामती और ताकत के बगैर कोई मुल्क मजबूत नहीं होता। टैक्स बेस को वाइडन करना, जो गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स हैं, सिविल सर्विस के जो इस्लाहात हैं, आबादी पर कंट्रोल, इसी तरह से सोशल मीडिया एक आले के तौर पर इस्तेमाल हो मुल्क को कमज़ोर करने के लिए, ये वो ख़तरात हैं जो मुस्तकबिल की जो क़यादत है उसके सामने हैं। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो अपना असर डालेंगे मुस्तकबिल की क़यादत पर कि इस मुल्क को जोड़ने की बात करें। विफाकी महकमा इत्तलात के PIO तारिक महमूद खान ने कहा कि खवातीन, नौजवानों, ख्वाजा असराओं और अकलीतों की सियासी अमल में शमूलियत को यकीनी बनाना जरूरी है। सेमिनार से मारूफ तज्ज़ियाकार सलमान गनी, माहिर तालीम शाहिदा दिलावर, साबिर शाह, नजम वली खान, मौलाना रागिब नईमी, सलमान आबिद और पीटर जैकब ने कहा कि सेहतमंद और जमहूरी माशरों में इंतखाबात का बर वक्त होना जरूरी है। मुकर्रीन ने कहा कि वोट की अहमियत है, इसलिए तमाम वोटर्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वोट लाजमी कास्ट करना चाहिए। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइंदा इंतखाबात से जुड़ा है, कौम कारकर्दगी देखकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर भट्टी। मॉडल टाउन लाहौर पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम की खिदमत की है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में पहली मोटरवे बनाई और मुल्क में मुतअद्दिद मेगा मनसूबे मुकम्मल किए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मनसूबों में शफाफियत की तस्दीक की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देने वालों के सब दावे नाकाम हुए। चोर डाकू का विरद करके इस मुल्क के अंदर वो जहर घोला गया है, वो इस मुल्क के अंदर बदतमीजी का तूफान उठा है कि जिसको अब संभालना एक कारे दारत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है, साबित हो गया चोर कौन है, साबित हो गया। अब मैं PTI के जो दोस्त और भाई हैं उनको कहूँगा कि वो PTI को वोट देने के बजाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वोट दें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान मुल्क का हकीकी सरमाया हैं, जिन्हें अपने बेहतर कल के लिए आज दुरुस्त फैसला करना है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान कौम कारकर्दगी देख कर वोट दे। वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जो इमरान नियाजी के दौर में इंतहा को दोबारा पहुंच चुका था 140 पे, वो कम होके 1 साल में वो 133 पे आ गया। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को मैंडेट दिया, हम मेहनत की, मिलकर मुशावरत से दिन रात एक किए, कुर्बानी दी, पसीना खून बहाया, तो इंशाअल्लाह ये शोर होगा, ये सब कुछ दफन हो जाएगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि 8 फरवरी मुल्क में नून लीग की कामयाबी की नवीद लाएगा और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होगा। आसिम नजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने तलागंग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है और अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। जलसे की तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने तलागंग में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हमें अवाम के मसाइल का इल्म है, अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई, लोगों को मैंने खिदमत की, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है और मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने का विजन रखती है। हुकूमत में आकर वसाइल को अवाम की तरक्की पर खर्च करेंगे। यहाँ पानी की जरूरत है मुझे पता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है मुझे पता है, पासपोर्ट ऑफिसर्स की जरूरत है मुझे पता है, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर चाहिए, यहाँ आपको कमिश्नर का दफ्तर चाहिए मुझे पता है। ये सब चीजें मेरे सोच में हैं, आपको करके देंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को मुंतखब कराएं तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली लेकर आएंगे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तकसीम और नफरत की सियासत को खत्म करेंगे, पूरे मुल्क से कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाएंगे। वो हैदराबाद में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं शिराज अली डाहरी। हैदराबाद में जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम ने नफरत की सियासत को ख़त्म कर दिया है। इक़्तिदार में आकर मंशूर के तमाम 10 नुकात पर अमल करेंगे। अवाम की आमदनी दुगनी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 30 लाख घर और बिलासूद कर्जे फराम करेंगे, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत और अवाम खुशहाल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो बिला तफरीक आपकी खिदमत करना चाहती है, जो नफरत और तकसीर की सियासत को कवर करना चाहती है, जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो न्याय है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इलेक्शंस में अब चंद दिन रह गए हैं, मुकाबला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का है। अवाम बाशऊर हैं और हमारी कारकर्दगी उनके सामने है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। 8 फरवरी को अवाम बाहर निकलें और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए वोट दें। तमाम मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट के साथ, आपकी मदद के साथ हम आपसे मुकाबला करेंगे। मगर पता आपकी होगी, पता पाकिस्तानी को पार्टी की होगी। जलसे में खिताब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बड़े सरमायादारों की सब्सिडी खत्म करके अवाम को सब्सिडी देंगे। किसान कार्ड, सेहत कार्ड, मुफ्त बिजली, तालीम के कई ऐसे मंसूबे बना रखे हैं जिनको शुरू करके अवाम को बराह रास्त फ़ायदा देंगे। जलसे से साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रियासत मदीना के नाम पर कौम को धोखा देने की कोशिश की गई। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बन्नू के अवाम की जमीयत से वाबस्तगी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा, अमन होगा तो खुशहाली होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम तासुब की सियासत नहीं करते, बल्कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज चाहते हैं जो मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। इंतखाबात जीतने के बाद तरक्याती मंसूबों का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के लोगों ने जमात इस्लामी के हक में फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद के लोगों, अब आपकी तकदीर आपके हाथ में है। एक तरफ स्टेटस को के फैसिलिटेटर और दूसरे तरफ एक खूबसूरत क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का लंबरदार
जमात इस्लामी आपके खिदमत में मौजूद है। अब फैसला आपने करना है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। मरकज़ उस्मानिया फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान की मौजूदगी में मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी अल्लामा ताहिरुल हसन ने अपनी जमात की तरफ से हिमायत का ऐलान किया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अली आबिद। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अल्लामा ताहिरुल हसन ने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जमात की तरफ से मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हालिया इंतखाबात में उनकी जमात मुस्लिम लीग नून और इनकी हलीफ जमातों का भरपूर साथ देगी। मुस्लिम लीग नून के साथ तावन मुशावरत के बाद किया है। इस वक्त किसी ऐसी जमात की तायद व हमायत नहीं कर सकते जो कि पाकिस्तान की सलामती व इस्तेहकाम के हवाला से कमजोर सोच रखती हो। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के तमाम ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उलमा किराम की हिमायत हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि अवाम हम पर एतमाद करें, हम मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की के सफर की राह पर गामजन करेंगे। उनकी हिमायत हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मजहबी जमातों, कुव्वतों और ख़ास तौर पे उलमा इकराम का हमेशा एहतराम किया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के आखिर में मुल्क को कौम की तरक्की के लिए दुआ भी की गई। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुल्तान में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हल्के और शहर के ताजरों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि मुल्तान में हकीकी तरक्की के लिए काम करेंगे। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि आने वाली हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे। इस मौके पर चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी ने जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान किया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि इंतखाबात के बाद आने वाली नई हुकूमत को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काम करना होगा ताकि रोजगार के मौके पैदा हों और मुल्क में खुशहाली आए। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि हम पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं ताकि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का मकसद मुल्क की तरक्की और अवामी खिदमत है। आम इंतखाबात के सिलसिले में सिंध में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों की जानिब से रैलियों और इंतखाबी जलसों का सिलसिला जारी है। तफसील जानेंगे ज़ीशान अहमद खान से। सिंध में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने कराची के जिला कोरंगी और सेंट्रल का दौरा किया और इलेक्शन के इंतजामात का जायजा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने बैलेट पेपर्स और इलेक्शन मटेरियल की तरसील के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मुतालिका अफसरान अपनी तैयारियों को मुकम्मल रखें। ठट्टा में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के NA 225 के उम्मीदवार रसूल बख्श जाखरो ने खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार में आकर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कारोबार के मौके फराहम करेंगे और 8 फरवरी को नून लीग की फतह का सूरज तुलू होगा। ठट्टा में ही NA 225 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सादिक अली मेमन और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार रियाज हुसैन शाह शिराजी की हिमायत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नौशेरो फिरोज में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मरकजी सदर और हल्का NA 206 के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा जतोई ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी का दिन मुल्क की सियासत में एक नए बाब का आगाज होगा और हम अवामी खिदमत की बुनियाद पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। जिला नौशेरो फिरोज में हल्का NA 205 से आजाद उम्मीदवार गुल हसन मशवरी ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में कामयाब होकर हल्के के लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हम इंतशार और करप्शन की सियासत का खात्मा चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कामयाबी अवाम की हिमायत से हासिल होती है। हम सब्र व तहम्मुल से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त काबिल मजम्मत और कानूनन जुर्म है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उन पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम है जो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर चौधरी बिरजीस ताहिर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के कारवां को ना रोका जाता तो पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की कर रही होती।
पुरनकाना साहब की तहसील सांगला हिल में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर अपने एजेंडे के मुताबिक मुल्क से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिस पर पंजाब समेत मुल्क भर के अवाम एतमाद करते हैं। अवाम बखूबी जानते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में ही अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शहला रजा और अली बदर ने कहा है कि अता तारड़ को NA 127 में अपनी शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है। अब वो वोटर्स को खौफजदा कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अता तारड़ किस कानून के तहत दफ्तर में दाखिल हुए, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे बैनर्स उतारे जा रहे हैं, लेकिन हम खामोश हैं ताकि इलेक्शन पुरअमन हो। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के हलके NA 119 में खवातीन ने बाइक रैली का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन बाइकर्स ने शिरकत की और मरियम नवाज के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी कमल लियाकत ने कहा कि NA 119 की खवातीन मरियम नवाज की जीत के लिए पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज खवातीन की सियासी, समाजी और माशी खुदमुख्तारी का निशान है। मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने जलसे की आड़ में करक में शरपसंदी की। अंबीरी कला करक में जलसे के दौरान सियासी जमात के शरपसंदों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। सियासी जमात ने इंतजामिया से जलसे की इजाज़त नहीं ली थी। जब पुलिस ने मना किया तो मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए और गाड़ियां तबाह हुईं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में कराची में सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से कराची के पुलिस चीफ खादिम रिंद ने PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। गुफ्तगू की तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर। मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। वहीं शहर कायद में भी इलेक्शन की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कराची की 22 कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 581 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने कराची के इंतखाबात के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। कराची के 5336 पोलिंग स्टेशन पर 45,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी असर अंजाम देंगे। 2776 इमारतों के लिए QRRF के 3892 एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। इसमें इस तरह से डिप्लॉयमेंट्स होती हैं कि कुछ तो स्टैटिक ड्यूटीज़ होती हैं पोलिंग स्टेशंस पे, कुछ क्विक रिस्पांस फोर्स होती है और कुछ रिज़र्व्स होती हैं जो SHO से लेकर एडिशनल IG सबके साथ रिज़र्व फोर्स होगी जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को फेस करेंगे, वहाँ पे अटेंड करेंगे। DIG पुलिस की ज़ेर निगरानी में 4210 पुलिस एहलकार रिजर्व ड्यूटीज पर मुकर्रर होंगे। कराची पुलिस के 9 SSPs, 16 SPs, 57 DSPs और 107 SHOs भी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन दफातर, वेलफेयर ड्यूटियों, अस्पतालों पर 2430 एहलकार तैनात किए जाएंगे। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कल दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाएंगे। इस दिन की तारीखी अहमियत और पस मंज़र के बारे में बताएंगे मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम मजहबी और नजरियाती रिश्तों में बंधे हैं और उनके दरमियान अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे के अटूट रिश्ते फितरी तौर पर सदियों से कायम हैं। इसके अलावा कश्मीर और पाकिस्तान का ताल्लुक जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। कश्मीर के तमाम दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ और तमाम ज़मीनी रास्ते भी कुदरती तौर पर पाकिस्तान से मिलते हैं। कश्मीरियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान के शहरों में मुलाजमत और कारोबार के सिलसिले में मुकीम है। कश्मीरियों के साथ इन्हीं रिश्तों की तजदीद के लिए हर साल 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को पहली मरतबा 1975 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काल पर मनाया गया। तहम 1990 से ये दिन हर साल बाकायदगी के साथ मनाया जाता है। मेरी यादाश्त के मुताबिक जब इंदिरा अब्दुल्ला गठजोड़ हुआ उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए स्ट्राइक की कॉल दी थी और उसके बाद फिर अब जब कश्मीर के अंदर से दोबारा ये तारीख 1990 की दहाई में शुरू हुई तो यहाँ पर जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद साहब जो थे तो उन्होंने कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए 5 फरवरी को जो एक दिन मुकर्रर किया। सबसे पहले काजी हुसैन अहमद साहब ने शुरू किया था, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, अमीर जमात इस्लामी ने। बाद में फिर जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब IGI के सदर थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको आगे किया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब वज़ीर आज़म बनी तो फिर ये एक कौमी जो है ये तकरीब का दिन जो है ये बन गया।
यौम यकजहती कश्मीर हर साल की तरह इस मरतबा भी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा और इस सिलसिले में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास तलब किया गया है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम ज़मीनी रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के मजलूम व महकूम अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। इसके अलावा रियासत भर में दिन की मुनासबत से जलसे जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार मुनक्कद किए जाएंगे। यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाकर तजदीद अहद किया जाता है कि कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम यकजान, दो कालिब और नाकाबिल तकसीम वहदत हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मशाल मलिक कहती हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद के लिए सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत है। तफसील मलिक उमर से। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि खित्ते में जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होगा, अमन कायम नहीं हो सकता। जो जेनोसाइड इंडिया कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो नस्ल कुशी कर रहा है, जो पॉपुलेशन जो है वहाँ पे सारी की सारी तब्दील कर रहा है, ऑलमोस्ट 50 लाख तक वहाँ पे इशू कर दिए हैं आरएसएस और हिंदुत्वा के सपोर्टर्स को वहाँ के डोमिसाइल्स और रेजिडेंसीज। और अभी सितंबर के अंदर इन्होंने जो भी अपने फासिकल इलेक्शंस कराने हैं वो भी एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा दुनिया के सामने, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत हाई वोटर टर्नआउट होगा और वो वोटर टर्नआउट इंडियंस का होगा, कश्मीरियों का नहीं होगा, क्योंकि कश्मीरी जब भी वहाँ पे फासिकल इलेक्शंस, पपेट इलेक्शंस होते हैं, कश्मीरी उनको बॉयकॉट करते हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल हुसैन मलिक ने कहा कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में नहत्ते लोगों पर जुल्म ढा रहा है। बदकिस्मती से दुनिया के सामने कश्मीरी अवाम का मुकदमा दुरुस्त अंदाज में नहीं पहुँच पाता। भारत की जानिब से आयद कड़ी पाबंदियों की वजह से कश्मीरी अवाम पर होने वाले जुल्म की दास्तान दुनिया तक नहीं पहुँच पा रही। मकबूजा जम्मू कश्मीर की इतनी जो है मतलब कि इतना नामुमकिन है कि वहाँ से इंफॉर्मेशन मिले या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कोई एक्सेस हो, बात हो सके अवाम के साथ, या कोई वहाँ की जो है ग्राउंड पे कोई जाके वहाँ पे देखे कि क्या इंडिया कर रहा है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी इसके ऊपर हम डिमांड करते हैं और उसके साथ साथ जो हम लोग डीमिलिटराइजेशन, डी वेपनाइजेशन, तो ये एक आई थिंक चांद पे के भी जाना आसान है वहाँ की फुटेज, मगर मकबूजा जम्मू कश्मीर से कोई जेनोसाइड की फुटेजेस इस तरह आना बहुत ही मुश्किल है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर हल किया जाए। 5 फरवरी मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का दिन है। इस दिन ये पैगाम देना है कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानियत सोज मजालिम को अक़वाम आलम के सामने उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में साइकिल रैली निकाली गई। तफसील चौधरी मजहर से। इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर पर भारत के वाशियाना मुजालिम के खिलाफ मजलूम निहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए साइकिल रैली निकाली गई। डी चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब पर पहुंचकर खत्म होने वाली रैली में तलबा समेत मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने हिस्सा लिया। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है तो आई थिंक दुनिया को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हें आज़ाद करना चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आज़ादी उनको मिले और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के बैनर थामे और स्टिकर लगाए। रैली के शुरका का कहना था कि हम कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत पर दुनिया को आगाह करते हुए मकबूजा कश्मीर के भाइयों को बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। कश्मीरियों को ये पैगाम देंगे कि कश्मीर हमारा है और हम कश्मीरी हैं और पाकिस्तान विल स्टैंड विद कश्मीर एट ऑल फोरम ऑफ द वर्ल्ड। हक क्या है, कश्मीरियों का हक जो है वो खुददारियत का है और उनको आज़ादी जो है वो नसीब होनी चाहिए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई रैली के शुरका ने कहा कि हमारा मकसद हुर्रियत आज़ादी के मतवालों का हौसला बढ़ाना और दुनिया को बताना है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं और कश्मीर बहुत जल्द बनेगा पाकिस्तान। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے حق خود ارادیت کے حصول اور مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی اور جبری قبضے کے خلاف جائز اور مقامی جدوجہد کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں جیل میں بھارتی سامراج کے تسلط میں زندگی گزارنے والے مظلوم کشمیری عوام کو درپیش سنگین صورتحال کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد فوجیوں کی تعیناتی کے ذریعے بھارت کی سیاسی ناانصافی اور مظالم کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائی۔ سینئر حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی نے سری نگر میں ایک بیان میں واضح کیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کا خواب ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی آواز کو عالمی برادری تک پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ادارے نے 6 کشمیری نوجوانوں کے خلاف ایک جھوٹے مقدمے میں عدالت میں فرد جرم عائد کر دی۔ جن نوجوانوں کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ان میں گزشتہ برس بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے 2 نوجوان بھی شامل ہیں۔ بھارت میں انتخابات کے قریب آتے ہی مودی سرکار کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے بنیادی حقوق غصب کرنے لگی۔ مودی سرکار بھارت میں قائم مساجد کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگی۔ نئی دہلی کی مساجد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے قبرستان بھی ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ ساری قبریں بالکل انہوں نے بالکل زمین دوز کر دی ہیں، قبریں میں گڈھے ہو گئے ہیں، کسی کا کفن باہر پڑا ہے، کسی کی میت نظر آ رہی ہے۔ اب ہمارے کو وہاں جانے بھی نہیں دیا جا رہا کہ ہم دیکھ لیں اپنے کوئی کتے کھائیں کیا ہیں، کچھ نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کسی بھی پر۔ تڑی پاڑ راج کریں گے تو ایسی ہوگا، کون سا قانون ہے کرمنل راج کریں گے تو فورس آئی زبردست اور 10 بلڈوزر آئے اور آتے ہی ہم سے بولا کہ یہ جگہ خالی کر دو، یہ ڈی ڈی اے کی لینڈ ہے اور وقف کی پراپرٹی ہے، ہمارے پاس سارے کاغذات ہیں وقف کے، تحصیل کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، تو یہ آپ کی کیسے ڈی ڈی اے کیسے لینڈ ہو جائے گی؟ تو ہمیں کوئی نوٹس دیا نہیں۔ 1.5 مہینہ رہیں گے، 1.5 مہینہ رمضانوں کو وہاں بھیجا گیا تھا، اس کے لیے آپ نے یہ ڈیمولیش کیسے کر دیا ہے؟ They used to eat there, they used to sleep there, they used to get education from there. We used to conduct medical camp for them at the end of every month. اور ناظرین اب کچھ بات کریں گے فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں۔ قابض فوج نے رفح اور خان یونس پر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 115 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 27,365 افراد شہید ہو گئے۔ مسلسل حملوں میں 66,630 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی افواج نے رفح میں ایک سکول اور مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا ہے جس میں خواتین اور بچوں سمیت 24 افراد شہید ہوئے۔ قابض افواج نے خان یونس میں یورپین ہسپتال کے قریب رہائشی علاقے پر بھی حملہ کیا ہے جس میں درجنوں فلسطینی شہید ہوئے۔ بے گھر فلسطینی مہاجر کیمپوں، ہسپتالوں، سکولوں اور کھلے آسمان تلے قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہزاروں افراد رفح سے مصر جانے کی کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ نابلوس سمیت مختلف مقامات پر مقامی افراد اور قابض فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ قابض مسلح فوج نے بلاتا مہاجر کیمپ میں حملہ کر کے متعدد گھروں کو مسمار کر دیا۔ پاکستان نے غزہ کے شہریوں کے لیے امدادی سامان کی 5ویں کھیپ روانہ کر دی ہے۔ پاک فضائیہ کے طیارے C-130 کے ذریعے امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امدادی سامان میں موسم سرما کے لیے خیمے، ترپال اور کمبل شامل ہیں۔ مصر میں پاکستانی سفیر امدادی سامان وصول کریں گے جسے غزہ بھیجا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امداد غزہ کے لوگوں کے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ ہے۔ اور ناظرین 29 جنوری 2024 کو اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران جنوبی سوڈان کے متنازع علاقے میں گھات لگائے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے سپاہی محمد طارق شہید کو آبائی علاقے بدین میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اب تک 181 پاکستانی دنیا بھر میں قیام امن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ سپاہی محمد زاروف انتہائی نڈر سپاہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔
सिपाही मोहम्मद ज़ारूफ ने 9 दिसंबर 2020 को आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद ज़ारूफ शहीद का ताल्लुक कलर सईदां से है। बहुत अच्छा गुजरा है वक्त मेरे बच्चे के साथ मेरा, और बहुत अच्छा प्यारा बच्चा था और बचपना भी अच्छा गुजरे है, लेकिन जवानी जिस वक्त आई है फिर 10 जमाता मैंने उसमें पढ़ाया है, लिखाया है, अच्छा कुरान शरीफ भी पढ़ा है। मैं यही पैगाम देना चाहनी है कि बच्चे जिस वक्त शहीद हो जाएं तो मां सब्र करना चाहिए। मेरे से तकरीबन 6 साल बड़े थे। माशाल्लाह बहुत प्यारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और शहादत का जज्बा मुझे भी है, बाकी भाइयों को भी है। अल्लाह पाक हमें भी इस तरह की मौत नसीब करे। पाकिस्तान को ये पैगाम है कि हमारा मुल्क जो बचा हुआ है ना, वो सिर्फ फौज की वजह से बचा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उनकी शहादत पे, हमें फ़ख्र है, नाज है। अगर हमें मौका मिले आर्मी में जाने का तो 1 सेकंड भी ना लगाएं। मेरे बच्चों को मेरे साथ बहुत सारा प्यार करते थे, बातें करते थे। उनके कौन कौन से ख्वाब है क्या क्या बताऊं। बेटे को कहते थे कि हाफिजा बनाऊंगा, एक फौजी बनाऊंगा और बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने अपने वतन की खातिर जान दी है, नजराना पेश किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। और जब बच्चों को देखती हूँ तो भाई तो मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको क्या। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत मंजर आम पर आए हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे में M4, कार्बाइन, AK-47, स्लीपिंग बैग्स, हैंड ग्रेनेड्स और दीगर असलहा शामिल था। इससे पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अमरीकी असलहे का इस्तेमाल अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अफगानिस्तान के अवाम खुसूसन अक़लियतें इंतहाई मुश्किल हालात में हैं और अफगान तालिबान के मजालिम का शिकार हैं, जबकि अफगानिस्तान की ख़वातीन को अफगान तालिबान ने जिंदा दरगोर कर रखा है। मशरक़ी अक़दार हों या इस्लामी तालीमात, अफगान तालिबान दोनों पहलुओं में शिद्दत पसंदी के अलंबरदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र में 80% अफगान लड़कियां तालीम से महरूम हैं। अफगान तालिबान ताजिक, हज़ारा, तुर्कमान और दूसरी लिसानी अक़लियतों के खिलाफ नस्ली तफरीक रखते हैं और अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए वो अक़लियतों को मारने से भी गुरेज नहीं करते। अफगान तालिबान और TTP जो अपनी मज़मूम दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करते आए हैं, अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। दरअसल मजहब की आड़ में वो अपने मज़मूम मकासद के लिए न सिर्फ अपने लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, बल्कि पड़ोसी ममालिक के लिए भी वबाले जान बन चुके हैं। भारत में मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ अफगान तालिबान और TTP की जानिब से खामोशी इस बात का सबूत है कि उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना है। अफगान तालिबान की पॉलिसियाँ किसी सूरत उनके शरीयत के दावे की अक्कासी नहीं करती, बल्कि ताकत और कुर्सी का खेल वाज़ेह देखा जा सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की बायोगैस के सबसे बड़े प्लांट का इफ्तिताह किया है। लाहौर की गुज्जर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोज़ाना 6000 मकाब मीटर गैस बन सकेगी। बायोगैस प्लांट में रोज़ाना 1600 किलो गोबर इस्तेमाल होगा और यहाँ से रोज़ाना 16000 किलो नामियाती खाद पैदा होगी। ये नामियाती खाद PHA और काश्तकार इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गुज्जरपुरा बायोगैस प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और बायोगैस प्लांट कॉम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बरकत मार्केट गार्डन टाउन के करीब अपनी नौयत के पहले मुनफरिद मेगा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। 2 मंजिला अंडरपास पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला अंडरपास होगा। मोहसिन नकवी ने इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम ज़मान दी ग्रेट गामा क्रॉसिंग रखने का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौमी हीरो वर्ल्ड चैंपियन गामा पहलवान को खराज अक़ीदत पेश करने का ये बेहतरीन तरीका है। वज़ीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर ने लाहौर में पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात और यूनिवर्सिटियों के इंतज़ामी और तदरीसी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ इल्म व दानिश के गहवारे हैं, इनका मयार मज़ीद बुलंद करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल की तालीम व तरबियत और उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने में जामियात का कलीदी किरदार है। नॉवल निगारी और ड्रामा नवीसी में मुमताज़ मकाम रखने वाली नामवर अदीबा बानो कुदसिया को हमसे बिछड़े 7 बरस हो गए, मगर उनकी खूबसूरत तहरीरों की बाज़गश्त आज भी हर सू है। बानो कुदसिया की अदबी खिदमात का अहवाल बता रही हैं शुमाइला शब्बीर।
आला तहजीबी और सकाफती रिवायात की अमीन बेमिसल अदीबा बानो कुद्सिया दुनिया अदब का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए शऊर व आगही के नए बाब रोशन किए। वो 28 नवंबर 1928 को भारतीय पंजाब में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर को अपना मस्कन बनाया। 1950 में गवर्नमेंट कॉलेज से MA किया और नामवर अदीब और दानिश्वर अशफाक अहमद के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गयी। बानो कुद्सिया की तहरीरें इस हवाले से भी मुनफरिद हैं कि उनमें इंसानी नफ्सियात का गहरा मुशाहिदा मिलता है। उनका एक एक लफ्ज फितरत के तकाजों का आईनादार है जो कारी के जहन के बंद दरीचे खोलता है। एक तरफ बानो कुद्सिया के अफकार और दूसरी तरफ अशफाक अहमद जैसे कदावर अदीब की सोहबत हो तो उनकी तहरीरें पुरअसर क्यों न हो। वो जो अंदर की मजबूती कल्चर अता करता था या मजहब अता करता था, अंदर का जो कल्चर होता है वो मजहब पे बैठा हुआ होता है जी। जब अंदर मजहब कम होने लगता है तो जो दरख्त का सैप है ना जी, वो पतला हो जाता है, वो मदद नहीं करता दरख्त की। दरख्त के बड़े रंग बिरंगे फल होते हैं, रंग बिरंगे पौधे पत्ते लाता है, लेकिन उसमें वो मजबूती नहीं रह जाती। बानो कुद्सिया ने तकरीबन 30 के करीब कहानियां, अफसाने और ड्रामे तहरीर किए जिनमें हिजरतों के दरमियान, लगन अपनी अपनी, मोम की गलियां और दीगर शामिल हैं। उनके शोहरे आफाक नावल राजा गिद्ध ने उन्हें मुनफरिद पहचान दी। बानो कुद्सिया ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कई यादगार ड्रामे भी तहरीर किए जिनमें अमर बेल, अनजाने में और कल्लो नुमाया हैं। बानो कुद्सिया को अदबी खदमात के एतराफ में हुकूमत की तरफ से सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज जैसे एजाजात से नवाजा गया। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करेंगे जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट से, जहां घरेलू मसनूआत की आलमी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गए। पाकिस्तान समेत 170 मुल्कों के 4900 से ज्यादा अफराद ने एक्सपो में हिस्सा लिया। बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले की तफसील हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद खोखर से। यूरोप के तिजारती मेट्रोपोल सेंटर फ्रैंकफर्ट में साल भर मुख्तलिफ आलमी नुमाइशों का सिलसिला जारी रहता है, जिनमें 1949 से शुरू अम्बियांटे को ख़ास अहमियत हासिल है। इस साल मेले में पाकिस्तान समेत 170 मुल्कों से 4928 कंपनियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की 9 कंपनियों पर मुश्तमिल तजारती वफद ने भी नुमाइश में शिरकत की, जिनमें से 6 कंपनियां कमर्शियल काउंसलर आमना नईम की सरपरस्ती में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम नुमाइश में शामिल हुई। हम पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं पिंक सॉल्ट का सामान लेके, और दुनिया में इसकी अच्छी मांग है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की कुदरत है, एक अल्लाह का तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए कि ये रॉ मटेरियल पिंक सॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान के पास ही मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसको आलमी मंडी में अच्छे तरीके से इसको पाकिस्तान को प्रेजेंट करें। घरेलू आराइशी मसनूआत का तिजारती मेला अम्बियांटे यूरोप में घरेलू मसनूआत मुतारफ़ कराने का बेहतरीन ज़रिया है। पाकिस्तानी नुमाइश कुनूनगान फ्रैंकफर्ट से बड़े पैमाने पर बरामदी आर्डर्स हासिल होने पर खुश हैं। हम तो सिर्फ सॉल्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में जो हमें मार्केट करने नहीं आती, उसकी इंडस्ट्री साइड हो सकती है। गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को इस तरफ देखना चाहिए। These top quality products can be made from Pakistan by Pakistani people and yeah, business has been good here. पाकिस्तानी घरेलू मसनूआत ख़ास तौर पर कुदरती नमक से बने मुख्तलिफ आराइशी लैंप और दूसरी अशिया दुनिया में हर जगह तेज़ी से मकबूल हो रही हैं, जो कि पाकिस्तानी डिज़ाइन तख्लीक करने वालों की मेहनत और सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। शबीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, कराची में गुज़श्ता रात से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया है। मज़ीद तफसील सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बारान रहमत बरसने से मौसम खुनक और खुशगवार तो हो गया, वहीं शहरियों के लिए अजियत और तकलीफ का बाइस बन गया। हफ्ते की शब अक्सर शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं, हजारों गाड़ियां और लाखों शहरी सड़कों पर फंसे रहे। चंद मिनट का सफर घंटों पर मुहित हो गया। अब शहर की अहम शाहराहों से पानी तो निकाल दिया गया है, तहां मुताद्दिद इलाकों, गलियों और मोहल्लों में अब भी बारिश और गटर का पानी मौजूद, जबकि बहुत से इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। 2 घंटे की 1 घंटे की बारिश से इतना बुरा सूरत हाल होती है कि जैसे ये शहर नहीं कोई गाँव का मंजर है।
आप अंडर बाइप आस पास देखें, उसमें सब पानी भरा हुआ है और लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के घर चले गए। रोडों का बुरा हाल, हर तरफ पानी, लोगों के लिए इतनी परेशानियां, हर तरफ गाड़ियां फंसी हुई है। पूरे शहर के अंदर नालों की सफाइयां करते और टाइमली करते तो आज जो है आवाम को ये मुश्किलात, ये मुसीबतें देखने ना पड़ती। बाइकें बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद हो रहा है, गाड़ी वाले धक्के मार रहे हैं, समझे। पानी का निज़ाम कोई सिस्टम सही नहीं है निकालने का। अभी तो पानी बहुत कम हो गया, रात को तो इतना था कि जहाँ बंदा था वहीं के वहीं था। पूरी रात बंदे ने गाड़ियाँ निकाली हैं। गटर यहाँ पे उबल रहे हैं, गैस बिजली वगैरह सब कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई यहाँ काम करने वाला कोई भी नहीं है। किसी की छतें गिर गई हैं हवा के अंदर और यहाँ हर जगह हर गली के अंदर पानी भरा हुआ है और कहीं ना सीवरेज का निज़ाम सही है, ना लाइट का निज़ाम सही है, ना गैस का निज़ाम सही है। निगरान वजीर आला मकबूल बाकर ने एक अहम इजलास में नाकिस इंतजामात पर DIG ट्रैफिक और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वजीर आला को बताया कि अब शहर की सूरत हाल काफी बेहतर है। वाटर बोर्ड के हुक्काम ने बताया है कि हब कैनाल में शिगाफ पड़ने से शहर में पानी की फराहमी 2 दिन तक मुअत्तल रहेगी। शहरी हुकूमत को इंतजामी तौर पर ज़्यादा मौसर अंदाज में खिदमत करने की ज़रूरत है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मरी में 2 रोज़ के वक्फे के बाद बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मलका कौसार में अब तक 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मजीद तफसीलात यासिर वकार शाह से। मलका कौसार में 2 रोज वक्फे के बाद दोबारा बर्फबारी ने हर सू चांदी बिखेर दी। मलका कौसार के पहाड़ों ने मुकम्मल तौर पर सफेद चादर ओढ़ ली। रात से सियाहों की बड़ी तादाद ने वीकेंड गुजारने के लिए मरी का रुख कर रखा है, जिस पर ज़िले इंतजामिया भी मुतहरक दिखाई दे रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की क़यादत में मरी कंट्रोल रूम कैंप किया गया, जिसमें सियाह किसी किस्म की मुश्किल में फंसे तो दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकेंगे। मैं कश्मीर से हूँ, यहाँ मरी में स्नोफॉल देखने के लिए आए हैं। मैं लाहौर से हूँ और मौसम बहुत अच्छा है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, दूसरी दफा आई हूँ, शायद बहुत मजा आ रहा है, सबको आना चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। यासिर वकार शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मरी। गिलगित अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय टेनिस टीम पाकिस्तान को डेविस कप टाई में हराकर वर्ल्ड ग्रुप 1 में पहुंच गई। इस्लामाबाद में खेले गए इवेंट के दूसरे रोज भारत ने डबल्स और रिवर्स सिंगल्स मुकाबला जीतकर 4-0 से टाई अपने नाम किया। डबल्स मुकाबले में भारतीय जोड़ी यूकी और साकित ने अकील खान और मुजम्मिल मुर्तजा को 6-2 और 7-6 से हराया। रिवर्स सिंगल्स में भारत के निकी पोनाजा ने मोहम्मद शोएब के खिलाफ 6-3 और 6-4 से कामयाबी समेटी। पहले रोज सिंगल्स मुकाबले में भारत के राम कुमार ने पाकिस्तान के इसाम उल हक के खिलाफ 6-7, 7-6 और 6-0 से फतह समेटी। दूसरे सिंगल्स में श्रीराम बालाजी ने अकील खान को 7-5 और 6-3 से हराया था। भारत से टाई हारने के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड ग्रुप 2 में चला गया है। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। So India has taken 4-0 lead in this Davis Cup. इस्लामाबाद में नेशनल स्टूडेंट्स गेम्स 2024 के दौरान आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। बिस्मा अली की क़यादत में पंजाब की टीम ने मैदान मार लिया। मुजीबुल हक की रिपोर्ट देखिए। तीरंदाजी, कमान के इस्तेमाल के साथ तीर फेंकने का फन, मशकिया महारत। तारीखी तौर पर आर्चरी का इस्तेमाल जंगों में होता था, लेकिन दौर जदीद में इसका बुनियादी इस्तेमाल मुकाबले खेल और तफरीही सरगर्मियां हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में नेशनल स्टूडेंट्स गेम्स 2024 के दौरान आर्चरी चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। चैंपियनशिप में तमाम सूबों के आर्चर्स ने अपनी महारत और फन का मुजाहरा किया। लड़कों के साथ साथ कम उम्र लड़कियां भी दुरुस्त बॉडी पोजीशन, मजबूत पकड़, सांस पर काबू और दुरुस्त एम के बुनियादी उसूलों पर अमल पैरा होकर टारगेट पर तीर बरसाती नजर आई। पंजाब के शहर लाहौर से आई बिस्मा अली ने तीर अंदाजी में खूब जौहर दिखाए। बिस्मा अली इंटरनेशनल सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि पंजाब ने गोल्ड जीता नेशनल स्टूडेंट गेम्स 2024 में। टीम को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अनथक मेहनत की और आगे इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन पैदा होता है और ख़वातीन लड़कियों को ख़ास तौर में इन खेलों में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। अंडर 18, अंडर 25 और ओपन मेंस और वुमेन्स कैटेगरी के मुख्तलिफ मुकाबलों में पंजाब के तीरंदाज छाए रहे। बिस्मा अली की क़यादत में पंजाब की टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की। पाकिस्तान में तीरंदाजी तेजी से उभरता हुआ खेल है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अब इस खेल की जानिब रागिब हो रही हैं। पाकिस्तान की 7 लड़कियां आलमी सतह पर भी तीरंदाजी में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा
चुकी हैं। तीरंदाजी एक मुश्किल सब्र आज़मा मगर दिलचस्प खेल है। इस खेल में तेज़ नज़र के साथ साथ जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूती इंतहाई ज़रूरी है। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।